Hello student of health class. In previous video we have studied about the marginalization, what is marginalization and how some section of the society are marginalized. They isolated, how they are isolated from the mainstream of the society. In this video we will try to understand about Adivasis and Adivasi and development and some other marginalized groups तो marginalized group कौन है? Groups who are totally isolated from the civilized growth, from the material growth of the mainstream of the society. They are called marginalized. In this term, in this situation, if we search about some marginalized group, then we get Adivasis, it means scheduled tribes and scheduled caste, women and children. These all the group of the society are marginalized. They are not getting full potential of development and full resource. They are not using the material resources of civilized society. Some people have maximum exploitation of natural resources and man-made resources, but some have not these are the things. Okay, so in this video you will understand what about. Let's try to write down here our objectives. After watching this video you will be able to understand about your 3 dimension of your textbook. Your first dimension is Adivasi, and second you will be study Adivasis and development and then other marginalized ग्रुप्स. अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स में हम किसको ऐड कर सकते हैं? हम वोमेन को, वोमेन एंड चिल्ड्रन. फर्स्ट आई शुड राइट शेड्यूल कास्ट, बिकॉज ये इनको एसटी कह सकते हैं. शेड्यूल ट्राइब्स, इनको ब्रैकेट में आप यस टीच कह सकते हैं, इनको यस सीच कह सकते हैं. ठीक है. एंड सेकेंड वोमेन एंड चिल्ड्रन. I hope about this section you know very well and you understand very well. No problem. We will try to understand what is the concept about these marginalized group. If you have any doubt about the marginalization, this process वो प्रक्रिया, वो तरीका जिसमें समाज का एक वर्ग हमारी मेन मुख्य धारा, जो समाज की मुख्य धारा, इससे अलग है, और ये प्रक्रिया कैसे होती है, इसको मार्जिनलाइजेशन कहते हैं. और मार्जिनलाइज्ड वो हैं जो ऐसे ग्रुप्स हैं. अब आपको पता है आदिवासी क्या है. आदिवासी कौन है? पहली बात, दे लिव इन फॉरेस्ट. हम दीज आर ऑल डायमेंशंस. आदिवासी का यहाँ से हम लिखते हैं आदिवासीज क्या है? फर्स्ट दे लिव इन फॉरेस्ट. दे हैव देयर own tradition and own custom. They are totally depend on natural product
practicing primitive subsistence farming, if you consider about the Adivasis, they have their own you can add in their own religion. They have their own religion. They have their own religions, own marriage practices, and other rituals. But they are totally isolated. They are totally isolated from mainstream of society. Adivasis, it means scheduled tribes. If you know something about them, and I think if you have studied about the tribal revolts in history portion, you know very well about them, that they have their own custom and constitute near about Adivasis in India, in our country, constitute 8% of our total population, and major tribal areas of our country, major states are where tribals live: Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha, northeastern states. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कौन कौन है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, Nagaland. These all called combinedly 7 sister. Most of the tribes live in this area, in these areas, in these states, northeastern states, and approximately maximum concentration of tribal people is in Madhya Pradesh and these areas. Okay, they are totally marginalized. Okay, Adivasi development actually since ancient time, forest played vital role for emergence and expansion of civilization and empires. Forests were major source of timber, medicine, animal. Okay, or moreover they played a crucial role in the recharging the river and maintaining the pollution free environment. Adivasis are totally dependent on for their daily use wood, medicine, and other type of required. They were totally depend on forests. When British came here, they started to exploit. They started to consume maximum consumption of forest products, and these groups, Adivasis group, tribals group were removed from their own habitat areas, और धीरे धीरे उनको ऐसे उनको जंगलों से अलग कर दिया गया. उनकी जो ट्रेडिशन थी, उनकी जो व्यवस्थाएं थी, उससे अलग कर दिया गया. उनके ही घरों में, मतलब उनके ही जंगलों में उनको इनक्रोचर, जबरदस्ती दाखिला देने वाले लोगों की तरह घोषित कर दिया गया. ठीक है, तो कुछ ऐसे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग करिए. और कुछ बायो रिजर्व्स जो हमारे देश में बने जंगलों में, जैसे नियर अबाउट हमारे देश में 18 बायो रिजर्व्स हैं. लगभग आप अगर देखोगे तो 102 नेशनल पार्क्स हैं, 442 मतलब लगभग 450 से ज़्यादा हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं. तो ये सब भी क्या किए कि जो ट्राइबल से लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल हैं, उनको क्या की, उनको शिफ्ट कर दिया उन्होंने जंगल से, मतलब उनका जो नेचुरल हैबिटेट वहाँ से उनको क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया. ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि एक जो ये जो सेक्शन है आदिवासी हैं जो जंगलों में रहते हैं, इनको ओरिजिनल हैबिटेट भी कहा जाता है. तो ये क्या हुए, टोटल आइसोलेटेड हो गए. ठीक है ना,
तो आपको यू शुड नो अबाउट द हु आर tribals and their distinct, they have distinct feature, they have distinct characteristics and how they are isolated. Okay, and next Bush, give me some amount of water. And second, other and their development हो रहा, बट डेवलपमेंट देखिए, जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, मेडिसिन और ये सब चीज़ें वहीं से मिलती हैं और वो सेल भी करते हैं, इनको भी दिमाग में रख सकते हैं। लगभग 200 सालों तक ले अंग्रेजों ने शासन किया। शेड्यूल कास्ट या सीज, शेड्यूल कास्ट क्या है? यू नो अबाउट द वर्ण व्यवस्था। इन द वर्ण व्यवस्था देयर वर 4 वर्णाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य एंड शूद्र। A distinct group of the society, who were हमारे समाज में एक ऐसा वर्ग है, हमारी जो सोसाइटी है वो जाति के आधार पे बटी हुई है। जातियों के आधार पे कुछ जातियों को क्या माना जाता है कि बहुत छोटे हैं, ठीक है, उनको एक स्पेसिफिक आधार पे, एक स्पेसिफिक पैरामीटर पे उनको हम छोटा मानते हैं। उनको मानते हैं कि वो लो ग्रेडेड वर्क करते हैं, जो उनका काम है, जो उनको काम करना चाहिए, उनका जो रहन सहन है, खान पान है, रहने का तरीका है, वो बहुत डिफरेंट है, ठीक है। Rigid stratification of the society into upper and lower caste promote discrimination and injustice। ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम से एक हमेशा एक धारणा बनी रही थी कि सोसाइटी में एक तो अपर कास्ट है और एक लोअर कास्ट है। लोअर कास्ट है, अपर कास्ट वो इनके पास स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं, ऐसा माना जाता है। तो वो जो शुरू से दबे हुए थे, इनको दलित जो कहा जाता था, दलित माने दबे हुए, इसको गांधी जी ने इनको तो हरिजन कहा। हरिजन समाज में जो आज शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, इनको भी कई प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन, कई प्रकार की उत्पीड़ना, कई प्रकार की जो एक अवॉइडेंस होती है या कई प्रकार की रिस्ट्रिक्शन जो होती हैं इम्पोज किया जाता है। इनको अनटचेबल्स कहा जाता है कि उनके इनसे हम इनके हाथ से पानी नहीं पी सकते, इनको हम टच नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें। खैर आज के समय में धारणाएं बदल चुकी हैं, बहुत काफ़ी हद तक ले बदल चुकी हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में इनको शेड्यूल कास्ट कहा गया है, ठीक है। तो हाँ, इस लोअर सेक्शन के जो कास्ट के हैं कि इनका काम ह्यूमन वेस्ट को, डेड बॉडी को हटाना, क्लीनिंग ह्यूमन एंड एनिमल वेस्टेज को, ठीक है, उनको ऐसा रिगार्ड किया जाता था, दे वर रिगार्डेड एज अनटचेबल्स, ठीक है। उसी सेम कंडीशन में अगर हम देखेंगे वोमेन एंड चिल्ड्रन दे आर आल्सो मार्जिनलाइज्ड। अब देखिए, अब 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जेंडर बायस प्रिवलेंट इन आवर कंट्री, ठीक है। लैंड वेयर गॉड इज वर्शिप्ड, हमारे देश में वहाँ पर जहाँ पर मतलब औरतों की एक ऐसे मतलब देवियों की पूजा की जाती है, वहीं पर ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो औरतों को इन्हीं वोमेन को हम कई प्रकार की हम समस्याओं को देखते हुए, फेस करते हुए देखते हैं। जैसे चाहे डोमेस्टिक वायलेंस हो, ठीक है, रेप, डोरी सिस्टम, other discrimination, other gender discrimination, कई प्रकार की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब इनकी अपलिफ्टमेंट के लिए प्री इंडिपेंडेंस एरा में मेनी रिफॉर्मर्स लाइक राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर worked toward women emancipation. After independence, legislation were passed and institution like National Commission for Women। हमारी आज़ादी के पहले बहुत से ऐसे रिफॉर्मर्स जिन्होंने
महिलाओं के राइट के लिए, महिलाओं के अपलिफ्टमेंट के लिए वकालत किया, एडवोकेटेड किए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन हुआ, जिसमें वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए आज तो महिलाएं बहुत आगे हैं, आज सभी क्षेत्रों में वो काम कर रही हैं। फिर भी उस आधार पे इन्हें अभी नहीं वो चीज़ सुविधाएं नहीं मिली। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्पायर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट एंड वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रेन। और भारतीय संविधान जो है हमारा बच्चों के जो मेल न्यूट्रिशंस हैं या उनकी जो सुविधाएं हैं, या जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं, या जो गरीबी है, इससे निपटने के लिए इस सेक्शन को चिल्ड्रन के जो सेक्शन है इसको भी बहुत स्ट्रैटेजिक और बहुत वेल प्रोग्राम्ड तरीके से क्या कर रही है, इनको अपलिफ्ट करने की काम कर रही है। ठीक है, कई ऐसे तरीके हैं, कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। तो देखिए हमने थोड़ा समझने का प्रयास किया उस सेक्शन को सिर्फ, कि आपके जो मेजर हैं तो आदिवासी फर्स्ट हो गए, वोमेन सेकंड हो गई, और चिल्ड्रन, वोमेन एंड चिल्ड्रन और शेड्यूल कास्ट, ये एक बहुत मेजर सेक्शन है मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के। और आप 4-5 लोगों को मार्जिनलाइज्ड सेक्शन कौन होते हैं, कौन कौन से ग्रुप को आप मार्जिनलाइज्ड कह सकते हैं, इसके बारे में आप उसको हमें क्लास के दौरान उसमें सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू।